friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Odisha Judicial Services 2012. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस channel को जल्दी से subscribe कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So as I always inform you, the paper comes like this. This is the year here and this is the booklet series. Roll number fill here. Black blue ballpoint pen you can use. Admission certificate, admit card you require, and there is negative marking of 25%. आई थिंक ये 2012 के पेपर में नहीं था उस टाइम पर नेगेटिव मार्किंग बाद में स्टार्ट किया गया है. So question number 1 is as usual from Constitution. Question number 1 says R.C. Cooper versus Union of India is commonly known as bank nationalization case. C is the answer. Next is 2. Number of fundamental rights guaranteed only to citizens are 6. B is the answer. कौन कौन से जरा आर्टिकल लिखिए जरा एक बारी कमेंट सेक्शन में. एक आर्टिकल मैंने लिख दिया है और एक को चलो लिख देता हूँ 19. बाकी के आप लिखिए. Next is 3. Following schedules related to municipality, that is Schedule 12. D is the answer. Schedule 11 किसके लिए है? पंचायत के लिए. Schedule 9 किसके लिए है? Validation of certain acts के लिए है. Next 4. Presidential satisfaction for imposing president rule is subject to judicial review on ground of malified. If subject to review only. Not subject to review ये तो गलती है. Subject to judicial review after the rule and no. पहले कर सकते हैं subject to judicial review चाहे malified हो या ना हो. B is the answer. Presidential rule मतलब emergency की बात है 352 and 356 में. लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि कौन सी है, ये नेशनल इमरजेंसी है फिर स्टेट इमरजेंसी है. नेक्स्ट इज 5. द करंट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस अंडर आर्टिकल. देखिए उस टाइम के ये करंट में होगा बट ये किया गया था आर्टिकल 252 के अंडर. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 6. द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अंडर 303. बी इज द आंसर. पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में कर सकती है रिस्ट्रिक्ट? 302 में. एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स वो है 304 में. 5 क्या है? सेविंग लॉज हैं ऑन स्टेट मोनोपोलीज. नेक्स्ट है 7. आर्टिकल 245 हैज़ बीन इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. ए इज़ द आंसर. ये बाकी के आर्टिकल्स जो हैं ये कहाँ पर हैं? आर्टिकल 13 में जो है वहाँ पर अप्लाई होते हैं. लास्ट की वीडियो देखेंगे तो 2013 की, तो उसमें क्वेश्चन था ये. Next, 8 by 42nd Amendment Act, preamble of the Constitution has been amended at one place या फिर two place? At two places. एक तो उसमें सेकुलर वर्ड जो है उसमें ऐड किया गया था ऊपर, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये वर्ड ऐड हुआ था. फिर नीचे जो है इसमें यूनिटी के बाद इंटीग्रिटी जो है वर्ड यूज़ हुआ था, तो 2 जगह अमेंड हुआ. फिर 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 9. द फॉलोइंग स्टेट हैज़ 2 हाउसेज. मतलब ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं. कौन कौन से स्टेट में है? तो देखिए 6 स्टेट्स हैं अभी. पहले 7 ही जम्मू कश्मीर अब हट गया है, ओबियसली वो यूटी बन गया. तो कौन कौन सी स्टेट रह गई? तो ये हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कटबाम या फिर कुछ और बना सकते हैं. मटकाब भी बन सकता है, बटकाम भी बन सकता है, तो वो कुछ भी आप ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं. मैंने ये कट बाम बनाया हुआ है. बाम होता है ना, सिर में दर्द होता है जब लगाते हैं, तो कट बाम. कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. तो आप अपना कुछ बना लीजिए याद करने के लिए. नेक्स्ट इज 10. द प्रोविजन डीलिंग विद सुप्रीम कोर्ट कैन बी अमेंडेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन. C is the answer.
बिकॉज ये लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में, और वहाँ पर जो है प्रोवाइडेड दैट इफ अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन चैप्टर 4, चैप्टर 4 किसके लिए है? यूनियन जुडिशरी के लिए। अगर वो उसको अमेंड करना है तो लेजिस्लेचर से रेटिफाई भी होना चाहिए ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट्स बाय रेजोल्यूशन। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 11, ए सूट इज बैड फॉर नॉन जेंडर नेसेसरी पार्टी। काम मेंशन किया गया, ये मेंशन किया गया ऑर्डर 1 रूल 9 में, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 12, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर सेक्शन 211 मीन्स पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ द पार्टीज या फिर को शेयर या फिर क्लोज नेबर या फिर हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13, कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर एनी मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर ऑर्डर 10 and rule 1A, A is the answer. Next 14, discovery by interrogatories and inspection has been provided under order 11, B is the answer. 10 में क्या है? अभी तो किया, देखिए एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट है। 15 में क्या है? डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। एंड 16 में क्या है? समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट 15, clerical or arithmetical mistakes in judgment, decree or order can be corrected under section 152, A is the answer. 153 में क्या है? जनरल पावर टू अमेंड। 151 इनहेरेंट पावर्स हैं। 153 ए क्या है? पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर समरली डिसमिस्ड, समरी डिसमिसल है तो वहाँ पर। नेक्स्ट 16, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंसेस आर इम्पोज्ड अंडर 35A, सी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन है ये। 35B में क्या है? कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। एंड 35 क्या है? कॉस्ट। 34 क्या है? इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट 17, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इज गवर्नड अंडर ऑर्डर 22 में, बी इज द आंसर। 21 क्या है? एग्जीक्यूशन के लिए है। 24 क्या है? पेमेंट्स इन कोर्ट। एंड 20 क्या है? जजमेंट एंड डिक्री। नेक्स्ट 18, टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड टू पार्टी एस्टैब्लिशिंग that there is a prima facie case in his favor, yes. Irreparable injury to him in case injunction is not granted, yes. Balance his convenience in his favor, yes. All of the above, D is the answer. Temporary injunction का provision कहाँ पर है? Order 39 में, D is the answer. Next 19, right to appeal from original decree has been provided under section 96, C is the answer. 100 में क्या है? Second appeal. Next 20, adjournment can be granted under ऑर्डर 17 रूल 1, डी इज द आंसर। ऑर्डर 14 क्या है? पेमेंट इनटू कोर्ट, अभी बताया था ऊपर। 15 आ गया फिर से डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। फिर 16 है समन्स टू विटनेस। नेक्स्ट 21, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स a police officer has authority to arrest without warrant. No, that is cognizable offense. Police officer cannot arrest without warrant. Yes, this is correct. B is the answer. नॉन कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? 2L ऑफ CRPC में। Next 22, under which section of CRPC the assistant public prosecutor is appointed? Under 25, D is the answer. 24 में क्या है? PP। 20 किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। एंड 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द अरेस्ट? ऑल ऑफ द अबव। पुलिस करेगी 41 में, मजिस्ट्रेट करेगा 44 में, प्राइवेट पर्सन 43 में, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, under section 50 CRPC, it is not mandatory to inform the arrested person that he is entitled to be released on bail. काम मैंडेटरी ने जहाँ पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि देखिए 50 के 2 में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ही शैल इन्फॉर्म। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है उसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो विदाउट वारंट किया है, मतलब कॉग्निजेबल केस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्म करने की। नेक्स्ट 25, ए समन्स इशूड बाय कोर्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड डुप्लीकेट, सी इज़ द आंसर। का मेंशन किया गया है सेक्शन 62 में, सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 26, एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 CRPC फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days, बी इज़ दी आंसर। वही मेंशन किया गया है 167 में ही, सब सेक्शन 2A में।
Next 27, which section provides for joint trial for several persons? That is section 223. D is the answer. और several offences की trial कहाँ पर है? That is section 220. Next 28, power of court to convert someone's case into warrants case is provided under section 259. B is the answer. Next 29, which section empowers the court to examine the accused? That is section 313. B is the answer. Next 30, under section 357, an order of compensation can be passed by a trial court, appellate court, or high court or session. तो सब कर सकते हैं. बोथ ए एंड बी इसमें ऑप्शंस हो गए, तो सी इसका आंसर हो गया. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 357 के सबसेक्शन 4 में ही. नेक्स्ट 31, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू रिपील सर्टेन पार्ट्स और टू कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड. तो रिपील वर्ड तो यूज़ किया नहीं है, कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड है. लॉ ऑफ एविडेंस, तो क्या रहेगा इसका आंसर? बी इज द आंसर. नेक्स्ट 32, द लॉ ऑफ एविडेंस इज एन एडजेक्टिव लॉ, तो बी इसका आंसर रहेगा, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है. नेक्स्ट 33, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी लीगली रेलिवेंट एंड नॉट लॉजिकली. लीगली होना चाहिए. ए इज द आंसर. Next 34, confession of one accused is admissible against co-accused if they are tried jointly for different offences for the same offence but jointly. They are tried for jointly for the same offence. D इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? 30 ऑफ एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट 35, a dying declaration is relevant in India only in criminal proceedings या civil proceedings? बोथ में होता है. D is the answer. बट उसकी वैल्यू जो है सिविल में कम रहती है, क्रिमिनल में ज़्यादा रहती है. नेक्स्ट 36, द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट कैन बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ फॉरेन लॉ. इंडियन लॉ पे नहीं ले सकते. ए इज द आंसर. सेक्शन 45 मेंशंस दैट. नेक्स्ट 37, सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल वेयर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर और नॉट, वेयर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एविडेंस हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर. तो इसका आंसर है जहाँ पर प्राइमरी एविडेंस आ सकता है और नॉन प्रोडक्शन उसमें अकाउंटेड कर ली गई है एविडेंस में, तो फिर तभी देंगे सेकेंडरी एविडेंस, तभी अलाउ होगा. तो सी इसका आंसर रहेगा. और सेक्शन कौन सा लगेगा इसमें? 65. और वहाँ क्या लिखा गया है? सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन इन एक्सचेंज कंडीशन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस. तो केसेस लिखे हुए हैं उसमें. नेक्स्ट 38, ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट. द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही डिड नॉट हैव अ टिकट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, या फिर ही डिड नॉट हैव दी, या फिर द प्रूफ इज ऑन रेलवे अथॉरिटीज. द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम. डी इसका आंसर है. ये सेक्शन 106 है और इसमें इलस्ट्रेशन है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस इप्सा लोकिटोर की ये आती है. मैं लीगल मैगजीम ही पूछ रहे हैं सेक्शन कौन सा 106 में है. ये भी जो लीगल मैगजीम है, इसका मतलब क्या होता है? थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एंड 106 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ टू द पर्सन ओनली स्पेशल नॉलेज. इसकी नॉलेज में है ना, स्पेशली उसकी नॉलेज में है ये. Next 39, when a document creating an obligation is in the hands of the obliger, the obligation has been discharged. It is a presumption of fact है ये, law नहीं है. तो B is the answer. Next is 40, the husband and wife are competent witnesses for or against each other in civil proceeding. criminal दोनों में होगा. C इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 120 एविडेंस एक्ट. Next 41, fraudulently has been defined as doing anything with intent to defraud. सेक्शन कौन सा है? देखिए मैंने इसका ही बनाया हुआ है. MWDF 22, 23, 24, 25. तो F25 में आ गया. B is the answer. 23 में क्या है? wrongful gain, wrongful loss. ठीक है. 24 में क्या है? dishonestly. 22 क्या है? movable property. 26 क्या है? reason to believe. नेक्स्ट 42, सेक्शन 34 IPC क्रिएट्स ए सब्सटेंटिव ऑफेंस या फिर रूल ऑफ एविडेंस. इट इज़ ओनली रूल ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है. बी इज़ दी आंसर. वो सब्सटेंटिव ऑफेंस अगर इसमें कंपैरिजन करें 149 से, तो 149 है सब्सटेंटिव ऑफेंस. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 43, द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट. तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. ए इज़ दी आंसर. सेक्शन 76 एंड 79 में अप्लाई होती है मैक्सिम. Next 44, section 84 IPC provides for legal insanity. B is the answer. मैकनॉटन का केस आता है ना, वर्ल्ड फेमस केस.
नेक्स्ट 45 द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, ए इज द आंसर। और प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है? 96 से 106 तक आईपीसी। नेक्स्ट 46 चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी डील्स विद, ये है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, ए इज द आंसर। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है ये है 493 से और 498 तक। डेफेमेशन का चैप्टर है 21, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 499 एंड 500 है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये चैप्टर 17, और कहाँ से कहाँ तक है ये? 378 थेफ्ट से स्टार्ट होता है और 462 तक है। नेक्स्ट 47 द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ क्राइम इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया, सी इज द आंसर। Next 48 in which case Supreme Court held that defense of drunken can be availed of only when intoxication produces such a condition as the accused loses his requisite intention of the for the offense। तो ये केस था मुबारक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 का केस है, ये 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 49 सेक्स विद अ गर्ल थ्रू फॉरन कंसेंट अमाउंट्स टू रेप, डी इज द आंसर। कंसेंट इज नो कंसेंट इफ इट इज टेकन अंडर मिसकंसेप्शन, कौन सेक्शन में लिखा हुआ है ये सेक्शन 90। नेक्स्ट 50 एवरी मर्डर इज कल्पेबल फॉर होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज द आंसर। The Limitation Act and CPC are to be read together because both statutes are relating to procedure and they are in pari materia फिर modus operandi, culpable legislation या फिर doctrine of acquiescence, ये है pari materia की अप्लाई होगा यहाँ पर, A is the answer। Next 52 for the balance due on a mutual and open current account where there have been reciprocal demands between the parties, the period of limitation is 3 years, A is the answer। का मेंशन किया गया, ये है पहला ही आर्टिकल, आर्टिकल 1 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 53 पोजेशन फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द प्लेंटिफ हैज बिकम एंटाइटल्ड टू पोजेशन बाय रीजन ऑफ एनी फॉरफीचर और ब्रीच ऑफ कंडीशन फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 12 years, बी इज द आंसर। कहाँ लिखा गया है ये? आर्टिकल 67 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 54 वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट एक्सपायर्ड ऑन 28 May 1961 बट नो जज और ऑफिसर कुड एंटर इनटू द कोर्ट प्रीमाइसेस ड्यू टू पिकेटिंग ऑफ द सिविल कोर्ट फ्रॉम 19 to 29 May, द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट ऑन 30th May was held to be in time since section 4 is an exception general rule that laid down in 3, तो B is the answer कर सकते हैं। फिर जो कोर्ट ही नहीं बैठे तो फिर वो एंटर कैसे करेंगे? नेक्स्ट 55 वेयर द प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, द सूट अपील एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे when the court reopens next day, तो D is the answer। यही तो किया था सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 तो है ये, एक सेक्शन 2 क्वेश्चन पूछ लिए। नेक्स्ट 56 अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 41712 ऑफ द CRPC इज 90 days, B is the answer। अगर सब सेक्शन 3 है तो 30 days है। नेक्स्ट 57 द एक्विजिशन ऑफ ईजमेंटरी राइट इज एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर डैश अनइंटरप्टेड विद द पर्सन, तो इसमें आंसर होना चाहिए 20 ईयर था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ। लास्ट पेपर देखें तो गवर्नमेंट पूछा हुआ, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 30 ईयर्स के प्रिस्क्रिप्शन है, प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी तो 20 ईयर्स का है, तो 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 58 टू सेट असाइड अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इंक्लूडिंग एनी सच एप्लीकेशन बाय जजमेंट डेटर डैश फ्रॉम डेट ऑफ सेल इज, दैट इज 60 days, A इज द आंसर। और क्या मेंशन किया गया है? ये है आर्टिकल 127 ऑफ CPC में, शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 59 द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स एक्शन इन द कोर्ट बट नॉट प्ली ऑफ चेंज ऑफ लॉ, डिफेंस, इग्नोरेंस और एस्टोपल, तो प्ली फॉर चेंज ऑफ लॉ तो है ही नहीं ये।
प्ली ऑफ डिफेंस हो सकती है, ले सकते हैं डिफेंस अगर कोर्ट ने नहीं देखा है तो। प्ली ऑफ इग्नोरेंस ये भी नहीं ले सकते। प्ली ऑफ एस्टोपल भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शंस मेरे को ठीक नहीं लगे यहाँ पर। नेक्स्ट 60, एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द स्केड्यूल, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 years when the rights to sue accrues, डी इज द आंसर। ये का मेंशन किया गया है, ये है आर्टिकल 113 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट इज 61, अटैच टू द अर्थ मीन्स थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। ये इंटरप्रिटेशंस में है ये ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। Next 62, a transfer of rupees 5,000 to B on a condition that B resides with A, otherwise to C. The transfer in favor of C is a conditional transfer. B is the answer. तो ये क्या है, कंडीशन प्रेसिडेंट है कि भाई B जो है A के साथ रहेगा या फिर C के साथ रहेगा तब इसको 5,000 रुपये मिलेंगे। A के साथ रहेगा अदरवाइज टू C, तो उसको B को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या होगी, कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई, तो B इसका आंसर हो गया। Next 63, restrictive covenants are such contracts which restricts use or enjoyment, ये बिल्कुल ठीक है ये। फिर कंडीशन इम्पोज बाय ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टिंग यूज और एंजॉयमेंट, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो बोथ हो गए, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 64, फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टोपल इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेक्शन 43, बी इज द आंसर। मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली इज अ लीडिंग केस ऑन, ये केस है ओरल ट्रांसफ़र पर एंड पार्ट परफॉर्मेंस पर भी, तो डी इसका आंसर रहेगा। डिस्पेंडेंस कितने 52 में, फ्रोडेंट ट्रांसफ़र 53 में, डॉक्टर एनाफिलैक्शन कितने में 35 में, पार्ट परफॉर्मेंस पार्ट है पास नहीं है ये है 53A। नेक्स्ट 66, इंग्लिश मॉर्टगेज मीन्स मॉर्टगेजर शुड बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्टगेज मनी, ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज शुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफर टू द मॉर्टगेजी ऑन द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, मॉर्टगेजी विल रिकन्वे द प्रॉपर्टी, है तीनों ही होंगे तभी होगा, डी इज द आंसर। इंग्लिश मॉर्टगेज कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 58E में, E फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट 67, वेयर 2 पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ द अदर, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सचेंज, सी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये सेक्शन 118 TPA। सेल कितने में 54 में, एक्शनेबल क्लेम की बात कहाँ की गई 130 में, चार्ज कितने में है 100 TPA। नेक्स्ट 68, लीज कैन बी डिटरमाइंड बाय मर्जर फॉर फीचर्स सरेंडर ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 111 ऑफ TPA। नेक्स्ट 69, रिडीम अप एंड फोरक्लोजर डाउन इज द राइट ऑफ अ, देखिए ये सेशन रिलेटेड है 91 एंड 94 से, तो ये राइट होता है पाइन मॉर्टगेजी का। 94 में क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ मीन मॉर्टगेजी, तो राइट है मीन मॉर्टगेजी का ये, तो सी इसका आंसर रहेगा सेक्शन 94। फिर है 70, नो मॉर्टगेजी पेइंग ऑफ अ प्रायर मॉर्टगेज शैल देयर बाय एक्वायर एनी प्रायोरिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड एज रूल अगेंस्ट टैकिंग, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा ये सेक्शन 93। सब्रोगेशन कितने में 92, मार्शलिंग कितने में है 81 में। नेक्स्ट 71, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, इट इज होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 72, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल विदाउट रिजर्व इज एन, विदाउट रिजर्व का मतलब कोई प्राइस जो है रिजर्व नहीं किया गया कि मिनिमम प्राइस मान लो इतना रहेगा, तब भी इन्विटेशन टू ऑफर ही रहेगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 73, कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इन इंडिया, और इंग्लिश लॉ में क्या है प्रेजेंट और फ्यूचर ही हो सकता है, आंसर क्या रहेगा ए, और कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 74, ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स, सी इज द आंसर। हम यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप। सेक्शन कौन कौन से हैं ये 68 से 72। Next 75, the right of subrogation in a contract of guarantee is available to the surety, C is the answer। और सेक्शन कौन सा है ये 140 एंड 141 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 76, जनरल लियन इज अवेलेबल टू, तो जनरल लियन किसके पास होता है, बैंकर के पास, बैंकर
फैक्टर, वॉरफिंगर, अटॉर्नी या फिर पॉलिसी ब्रोकर, उनके पास होता है जनरल लियन। सेक्शन कौन सा है ये? 171 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेली का भी होता है सेक्शन 170 में, बट दैट इज पर्टिकुलर लियन। पौनी का भी होता है राइट टू रिटेन, बट दैट इज राइट टू रिटेन नॉट लियन। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 77, एज सेड टू शॉपकीपर लेट पी हैव द गुड्स आई विल यू पेड, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए इज द आंसर। बिकॉज वो क्या, शॉपकीपर को क्या कह रहा है, भाई तू पी को दे दे सामान, मतलब उसने क्या दिया, उसने क्रेडिट पे दिया, और जो है एस जो है श्योरिटी वो पे करेगा इसका। तो 3 पार्टी एग्रीमेंट हो गया। क्या आंसर रहेगा इसका? ए। और सेक्शन कौन सा लगेगा? 126। इंडेमनिटी कहाँ पर? 124 में। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट 31 में। नेक्स्ट 78, व्हेन कंसेंट इज caused by fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of aggrieved party. A is the answer. सेक्शन 19 provides the same. फ्रॉड के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 79, द फाउंडेशन ऑफ लॉ फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेड डाउन इन हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। डी इज द आंसर। टिन वर्सेस हॉफमैन किस पर है? ये है क्रॉस ऑफर पर। एंड टेलर वर्सेस कार्डवेल किस पर है? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर। नेक्स्ट 80, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट क्या करेगा? डिस्चार्ज ऑफ द डेट। ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 63 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 81, अंडर हिंदू सेक्शन एक्ट the property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the section 8. A is the answer. फीमेल का कहाँ पर? सेक्शन 15 में। नेक्स्ट 82, A dies after the commencement of the Hindu Succession Act leaving behind 3 sons B, C, D. The intestate of the property passes to by splinter relationship, testament succession, survivorship, limited estate. अब देखिए ट्रिक क्वेश्चन है कैसे। देखिए कह रहे हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उस टाइम पर जो है सर्वाइवरशिप थी कोपार्शनल प्रॉपर्टी की, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर हम आज देखें तो 2005 की अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया गया है? बाय सक्सेशन एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है सी है। नेक्स्ट 83, एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल बी हेल्ड बाय हर फुल ऑनर। डी इज द आंसर। एब्सोल्यूट ऑनर रहेगी वो। सेक्शन कौन सा है ये? 14, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट एज पर सेक्शन 14(2). नेक्स्ट 84, वन हु इज रिलेटेड बाय ब्लड टू द डिसीज्ड थ्रू फीमेल इज नोन एज। होली थ्रू फीमेल क्या होते हैं? वो कोगोनेट्स होते हैं। बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 3C, एंड A फॉर एग्नेट, C फॉर कोगोनेट। नेक्स्ट 85, हिंदू डाइज लिविंग बिहाइंड फादर एंड सन्स डॉटर सन। ये है हिंदू। अब इसका एक ये हो गया डैड, इसका एक फादर है, और इसके जो एक है सन था वो डिसीज्ड है, उसकी डॉटर थी और उसका सन है। सन्स डॉटर सन, तो क्या है ये? क्लास 2 ईयर्स हैं। बी इज द आंसर। फादर किस में है? एंट्री 1 में। एंड सन डॉटर सन किस में है? एंट्री 2 में। नेक्स्ट 86, इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन। डी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट में, ऊपर ही लिखा हुआ है अप्लाइज टू। नेक्स्ट 87, टू मैनेज द एस्टेट ऑफ डिसीज एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय। देखिए सेक्शन 2A जो है उसमें लिखा हुआ है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? ऑब्वियसली द कोर्ट। नेक्स्ट 88, अ होलोग्राफ विल इज अ विल रिटन बाय द टेस्टेटर इटसेल्फ। डी इज द आंसर। होलोग्राफ विल क्या होती है? जो प्योरली हैंड रिटन है, हैंड रिटन और साइन बाय टेस्टेटर, कहीं टाइपिंग वाइपिंग नहीं होती इसमें। नेक्स्ट 89, ए लेगेसी इज bequeathed टू A इन केस ऑफ his डेथ टू B. इफ A survives the testator, the legacy to B. लेगेसी टू बी क्या है? इफ A survives the testator, the legacy of B does not take effect. A इसका आंसर रहेगा। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉन्टिजेंट बिक्वेस्ट सेक्शन 124, और ये उसमें इलस्ट्रेशन A है। अदर ऑप्शंस आर देयर। Next 90, a copy of will certified under the seal of the court and a grant of administration of the estate to the testator is known as
प्रोबेट, बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 2F ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में। नेक्स्ट is 91. The following section of Specific Relief Act deals with a contract with specific performance with variations. This is section 18. 2013 में पूछा था, सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है अगेन। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 92. The principle in which section 12 of the Specific Relief Act is based is equity to the substance rather than to mere letter of a contract. या फिर equity looks to the substance of the contract and requires substantial compliance with its condition rather than its literal fulfillment. देखिए दोनों में से एक ही ठीक होगा, तो इसमें क्या ठीक रहेगा? बी इज द आंसर। नेक्स्ट 93. द प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड वेयर डैमेजेस आर एन एडुक्वेट रेमेडी। यस, इट इज करेक्ट। Granting of specific performance is within the discretion of the court. Yes, it is also correct. Would be refused where the contract was wanting mutuality at the time when it was entered into. Yes, this is also correct. So all of the above is correct. D is the answer. Next is 94. One of the following statement is not applicable according to section 8 of the Specific Relief Act. No suit can be brought against the owner. Yes, it is correct. Person having special right to present possession may bring the suit even against the owner of the property. Yes, it is correct. A decree is for returnable movable property. Yes, it is correct. A decree is for a money value against a movable property. No, this is not applicable. डिक्री है वो पोजेशन के वापस लेने के लिए है, और सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ ऑलवेज प्रिज्यूम दैट compensation would not afford adequate relief for the loss of things claimed. स्पेशल वैल्यू है, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 95. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट एनफोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ये कर सकते हैं। रिवर्जनर इन पोजेशन ये भी कर सकता है, रिवर्जनर इन रिमाइंडर ये भी कर सकता है। रिमाइंडरमेंट फॉर टेनेंट फॉर लाइफ वाला करेगा, तो ये हो गया गलत। डी इज द आंसर। सेक्शन 15 में मेंशन किया गया है क्लॉज डी में। नेक्स्ट 96. द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो कौन कौन से हैं ये? वेयर द कॉम्पनसेशन इज एडुकेट रेमेडी, तो ये तो नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, ये भी नहीं हो पाएगा। डिटर्मिनेबल, ये भी नहीं हो पाएगा। अब 2018 के अमेंडमेंट से इसको एडिट कर दिया गया है, एडुकेट रेमेडी वाला, एडुकेट रिलीफ वाला, तो वहाँ पर कर दिया गया है क्या? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो बट फिर भी डी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट 97. वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्ट विच हैव बीन हेल्ड नॉट इंडिविजिबल। तो हेल्ड नॉट इंडिविजिबल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? डिविजिबल है प्रॉपर्टी। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन अ वन लॉट। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग डिफरेंट पोर्शन ऑफ द लैंड। Where property is sold in distinct lots with separate contract for each lot. Where person enters into mutual contract of sale or purchase. तो D इसका आंसर हो सकता है। Next 98. In a suit for specific performance, the defendant may set up the following grounds. क्या क्या? Uncertainty and excess of power, hardship or unfair advantage, both A and B. C is the answer. Next 99. Rectification of an instrument under Specific Relief Act is allowed when fraud or mutual mistake of a party to a contract is allowed. Under section 26, 1 A is the answer. Next 100. Refuse to rescind a contract by a court is laid down in one of the following section. Decision कहाँ पर है? सेक्शन 27 है, और इसके 2 में मेंशन किया गया है when court can refuse, तो B इसका आंसर होगा। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Odisha Judicial Services 2012. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.